ناول غازی جاسوس قسط نمبر 19۔ اردو دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ لوگوں کے لیے غازی جاسوس ناول کا قسط نمبر 19 پیش کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو ایک درخواست ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چند منٹوں کے توقف کے بعد میں نے دوسرا ٹریسنگ پیپر سے اس نقشے کی ایک کور کاپی بنانے کے لیے لگایا۔ اتنی بڑی کامیابی نے ہمیں بو کور تکن کا احساس بھی نہیں ہونے دیا۔ ہمارے ایک ساتھی اور گھنٹے کے بعد چائے اور بسکٹ ہمیں پیش کرتا رہا جس سے ہمیں تر و تازہ ہو جاتے۔ میرے نمبر 2 نے بتایا کہ چھوٹے کیمرے میں فلمیں ختم ہوا چاہتی ہے۔ میں نے ان فلموں کی رول پر تحریر، ان کا سائز، ان کی کمپنی کے نام لے کر اپنے نمبر 2 کو کہا کہ کناٹ سرکس میں کوڈیک ایجنسی اور شاپ سینٹر سے وہاں جا کر پتہ کرے۔ شاید اس فلم کی سائز کی فلم وہاں سے مل جائے۔ میں نے اس کیمرے میں پڑنے والی سل بھی لانے کو کہا۔ ایک گھنٹے کے اندر ہی میرا نمبر 2 خوشی واپس لوٹا۔ اس نے سل شاپ میں اس میں پڑی ہوئی ساری کی ساری 32 فلمیں خرید لی تھی اور کیمرے کے بہت سے پالتو سیل بھی لے آیا تھا۔ ہم اپنے کام میں جٹے ہوئے تھے۔ سلیٹوں سے درا کاپیاں بن رہی تھی۔ کیمرے سے ہر صفحے کی دو فوٹو بنائے جا رہے تھے اور میں نقشے کی دوسری کاپی بنانے میں مشغول تھا۔ آدھی رات سے زیادہ بیت چکی تھی جب ہم نے کام ختم کیا۔ اب ہمارے پاس ڈائریوں کی ہر صفحے کی 2 کاپیاں اور کیمروں سے اترے 2 عکس موجود تھے۔ تارافور فائلز کی بھی 200 کاپیاں اور 2 عکس موجود تھے۔ نقشے کی ہو 2 کاپیاں ٹرانس پیپر پر موجود تھی۔ کام ختم ہوا تو ہمیں بھوک اور تکن کا احساس ہوا۔ ساتھیوں نے بتایا کہ گھنٹہ گھر کے قریب ایک ریسٹورنٹ رات بھر کھلا رہتا ہے۔ میں نے ایک ساتھی کو کھانا لانے اور دوسرے کو اسکور دینے کے لیے ساتھ بھیجا اور ان کے واپس آنے تک یشونت کو واپس کرنے والی ڈاک ترتیب سے کر کے تھیلے میں ڈال دی۔ پاکستان بیچنے والی ڈاک تو ترتیب سے رکھ کر پیکٹ میں بند کر دیا۔ جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو میں نے باقی رات ساتھیوں کے ساتھ وہی بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یشونت کو ڈاک واپس کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ میں نے ایک چٹ پر اسے چوڑی بازار کے ایک ریسٹورنٹ میں سے شام 7 بجے ملنے کا کہا اور ساتھیوں کو کہا کہ علی صبح ڈاک کا تھیلا اور میری چٹ یشونت کے گھر پہنچا دے۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو 8 بج چکے تھے۔ ساتھی ڈاک کا تھیلا یشونت تک پہنچا کر واپس آ چکے تھے۔ ناشتہ وغیرہ کر کے میں نے اپنی ہوٹل روانہ ہونے والا تھا کہ یک دم مجھے خیال آیا کہ 10 بجے ہمارا وائرلیس پر پاکستان رابطہ ہونا ہے۔ میں نے وائرلیس آپریٹر کو کہا کہ رابطہ ہونے پر میسج ریسیوڈ آل اوکے کے علاوہ کوڈ میں جیکٹ فورٹ سینڈ موسٹ ریلیبل کولیکٹ بھی ٹرانسمٹ کر دے۔ یہ پیغام بھیجنے کے بعد میں اپنی ہوٹل چلا آیا اور لمبی تان کر سویا۔ شام کے مجھے یشونت سے ملنا اور اس کے آرزو کے سلسلے میں اپنے کردار ادا کرنا تھا۔ شام کو میں نے ہوٹل کے لاکر سے پیسے نکالے اور 7 بجے چوڑی بازار کے ریسٹورنٹ میں پہنچ گیا۔ یشونت میرے انتظار میں وہاں پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ آج اس کی حالت دیدنی تھی۔ اپنے آرزو کے اتنے قریب آنے کی خوشی اور جو کام وہ کر بیٹھا تھا اس کی جو خوف بیک وقت اس کے چہرے سے آیا تھی اور ان دونوں کیفیات پر قابو پانے کے لیے اس نے بہت زیادہ چڑھا رکھی تھی۔ میں نے اسے اس کی کامیابی کی مبارکباد دی تو وہ کہنے لگا، صاحب جس روز جنرل صاحب چھٹی سے واپس آئے اسی روز اپنی ڈاک پڑھنے کے بعد مجھے ٹائپنگ کے لیے بلا لیا۔ میں نے جنرل صاحب کی مطلوبہ فائل نکالنے کے لیے سیف کھولی تو سیف کی چابیاں بجائے سیف کے تالے میں چولنے کی اپنی جیب میں ڈال دی اور ٹائپنگ کرنے کے دوران تینوں چابیاں کی نقش صابن پر اتار لیے۔ جب کام ختم ہو گیا تو سیف بند کر کے چابیاں جنرل صاحب کو لٹا دی۔ چابیوں کے نقش تو میرے پاس تھی لیکن چابیاں بنوانے میں بہت دشواری پیش آئی۔ چابیاں بنانے والی دکانوں پر گیا تو سب نے نقش کی چابیاں بنانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ بہت رسکی ہے۔ چٹلال میاں میں بشیرہ گیراج والا کے پاس جاؤ۔ میں چٹلال میں بشیرہ کو ڈھونڈتا ہوا اس کے گیراج پہنچا تو اس نے نقش دیکھ کر کہا کہ کس نے بھیجا ہے؟ میں تو ڈرا ہوا تھا، یوں ہی کہہ دیا بڑے صاحب نے بھیجا ہے۔ بشیرہ کو جیسے کچھ یاد آ گیا، کہنے لگا اچھا تو بڑے صاحب کو پھر کوئی سیب کھولنی ہوگی۔ میں نے سر ہلا کر اسبات میں جواب دیا تو بشیرہ مجھے گیراج کے پچھلے حصے میں لے گیا جہاں لیتھ مشین لگی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے میں اس نے تینوں چابیاں بنا کر دیا اور کہا کہ بڑے صاحب کو کہنا کہ میرا حصہ نکال کر الگ رکھ دینا، میں بندہ بیچ کر منگوا لوں گا، خود یہاں نہ آئے پہچان لیے جائیں گے۔ میں حیران اور سراسیمہ تھا کہ جس بڑے صاحب کے غلطے میں بشیرے نے چابیاں بنا کر دی، جب انہیں پتہ چلے گا تو معلوم نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔
चाबियां लेकर मैं भागम भाग इस इलाके से निकला और फैसला किया कि आइंदा कभी चतलाल में नहीं जाऊंगा। हफ्ते को काम आधा दिन होता है। जनरल साहब के जाने के बाद भगवान इनका नाम लेकर मैं जनरल साहब के दफ्तर में घुस गया। चाबियां लगाई तो वो बिल्कुल सही बनी हुई थी। सेब खोलने में कोई दुश्वारी नहीं और चंद मिनट में फाइल्स और डायरी के थैले में डालकर दफ्तर से बाहर आ गया। अब एक मशीन बाकी है। कल दफ्तर में सुबह जल्दी जाकर जनरल साहब के आने से पहले तमाम फाइल्स और डायरियों और नक्शों को वापस इनके सेफ में रखना है। यशवंत ने ये सब तफसील मुझे अपनी बहादुरी दिखाने के लिए सुनाई। फिर मैंने भी भरपूर दाद दी और कहा कि जब तुमने इतना मुश्किल मरहला इतनी आसानी से तय कर लिया है तो बाकी भी कर लूँगे। मैं चाय पी रहा था और यशवंत को मेरी खामोशी खटक रही थी। कहने लगा, साहब आपका काम तो मैंने जान हथेली पर रख कर दिया। अब वोट समी इतना कहकर वो रुक गया। वो मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। मैं खामोशी से उसके इसके पियत से लुत्फानंदोज हो रहा था। मैंने चाय ख़त्म कर ली। मेरे चंद मिनट की खामोशी से यशवंत से जो बारी पड़ रही थी। इसने मेरा बाजू पकड़कर मुल्तजाना अंदाज में कहा, साहब आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ और थोड़ी देर में हम समी के बाला खाने पर पहुंच गए। हमने समी की माँ को पिछले कमरे में बुलाया। यशवंत जो समी की माँ के सामने बेगी बिल्ली बना रहता था, आज इसकी अंदाज ही कुछ और थे और बढ़ बढ़ कर बातें कर रहा था। काफ़ी देर तक वह मामला तय होते रहे। भला खैर ये फैसला हुआ कि समी की माँ को फिलहाल 20,000 रुपये दे दी जाए। बाकी पैसे रस्म तय होने के बाद अदा किए जाएंगे। मैंने 20,000 यशवंत को दिए। इसने फौरन ही पैसे समी की माँ को दिए। यशवंत ने मुतालिबा किया कि आज महफल में समी तमाशियों के सामने रस्म अदा करने का ऐलान किया जाए। समी की माँ को भला क्या इतराज़ हो सकता था। मैंने यशवंत के मुतालिबे पर उसे 2,000 दिए और वही बैठ गया और मैं वापस ही चला आया। वापसी पर मैं सोच रहा था कि हर फसाद की जड़ जना और ज़मीन है। अगले रोज़ मैं बिल्कुल फारिग रहा। मंगल के रोज़ हस्बी मामूल यशवंत ने डाक मेरे साथी को दी, जिसकी कापियाँ बनाकर डाक उसे लौटा दी गई। मुझे आइंदा बुध को पाकिस्तान से वायरलेस कॉल का इंतज़ार था। बुध की सुबह ही मैं साथियों के घर चला गया। मुकर्रर वक्त पर वायरलेस सीट आन किया। रबता कायम होते ही पाकिस्तान से पैगाम मिला, जिसे डिकोड किया गया। मैसेज में कहा गया था कि आइंदा इतवार एक स्पेशल कुरियर जिसमें जानता था अपने साथियों के हमरा मुझे सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर दिन 11 बजे मिलेगा। तमाम डाक इसके हवाले कर दी जाए। मैंने अपने साथियों से मशवरा करने के बाद तमाम डाक की एक काफ़ी अपने पास रखनी और एक काफ़ी कुरियर के हवाले कर दी और शोरों से लेकर अब तक की जो तमाम रिपोर्ट्स कापियाँ हमारे पास थी उनको जला दिया जाए। हमने ये कापियाँ इसलिए रख थी कि अगर कुरियर दौरान सफ़र पकड़ा जाए तो रिकॉर्ड हमारे पास सेव रहे और उन्हें दोबारा हम पाकिस्तान पहुँचाने की कोशिश करें। और जो डाक जनरल की दफ्तर से मिली थी उसको सेव कर लिया। चुनांचे बाकी सब रिकॉर्ड जला दिया गया ताकि अगर खुदा न खास्ता चाप पड़ जाए तो हमारे निकलने के इम्कान ज़्यादा रहे। नए कुरियर के आने तक सिवाय यशवंत से डिस्क वसूल करने के साथी को सब काम बिल्कुल बंद करने का कह दिया और खामोशी से घर रहने का कहा और अपने होटल वापस चला आए। यशवंत की शादी की रस्म आइंदा हफ्ते की शाम को टिहरी थी। मैंने यशवंत को बकाया रकम भी दे दी। मेरे पास 2-3 रोज़ फरागत के थे। चांद की 14 तारीख भी 2 दिन बाद थी। मैंने ताजमहल आगरा देखने का प्रोग्राम बनाया और अगली सुबह आगरे के लिए ट्रेन पकड़ ली। इंतहाई सोच और हाजिर दिमाग के बावजूद इस सफ़र में मुझसे एक ऐसी गलती हुई जिसके मुतल्लिक़ आज भी मैं सोचता हूँ तो मुझे खुद पर हंसी आ जाती है और अपनी गलती का मुतवक्किल अंजाम सोच कर काम जाता हूँ। रेल का सफ़र में हमेशा कोशिश करता हूँ कि 3rd क्लास में करूँ। इसकी वजह है कि रश की वजह से हर कोई अपनी जगह बनाने और सामान को संभालने की कोशिश करता है और दूसरे मुसाफिरों की तरह कम ही तवज्जो देता है। मुझे डब्बे में खिड़की के साथ सिंगल सीट मिली। मेरे सामने की सीट एक हिंदू ब्राह्मण की थी। हिंदू ब्राह्मण माथे पर तिलक लगाए उल्टी दूधी बांधने बैठा था। आगरा पहुंचने से तकरीबन आधा घंटे कबल इस ब्राह्मण ने ढक्कन वाली पीतल की चमकती हुई करोली निकाले और हाथ की ऊख में पानी अंडेल कर पीने लगा। मेरे प्यास भी अचानक जाग उठी। मैंने इस ब्राह्मण से कहा, महाराज अगर कष्ट न हो तो हमें भी चल पीने को दे दे। ब्राह्मण ने गुड़वी में पैर तरफ बढ़ा दी। मैंने पानी ऊख बनाकर पीना चाहा तो सारा पानी मेरे हाथ की उंगली से खला से नीचे बहने लगा। ब्राह्मण ने मुझे उस सूरत-ए-हाल गिरा देकर मुस्कुरा कर कहा, माशे आप गुड़वी को मुँह लगाकर जल पी ले। मैंने गुड़वी को मुँह लगाकर सेव होकर पानी पिया और शुक्रिया के साथ गुड़वी वापस कर दी। मेरे खिड़की से गुजरते मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रहा था कि अचानक कोयले का एक जरा मेरी आंख में घुस गया। भारत में अक्सर रेलवे इंजन कोयले से जलते हैं। मुझे चंकिया और बेख्तियार मेरे मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकला।
ब्राह्मण ने मुझे घूरते हुए गुस्से से कहा, तुम मुसलमान हो? उसे अपनी गुड़वी के नापाक होने का गम और गुस्सा था। मुझे और कुछ न सूझा तो मैंने उस सरगोशी में कहा, खामोश हो, इस डब्बे में कुछ पाकिस्तानी जासूस सफर कर रहे, सिर्फ उन्हें मुतवज्जे करने के लिए मैं ये कहा है। मैं दिल्ली में IB का एपिसोड और दिल्ली से ही उन्हें पहचानने की कोशिश में हूँ। ब्राह्मण हैरान व शर्मदा मुझे देखने लगा। मैंने अपनी आवाज़ पर भरपूर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम दोनों इस कैफियत का शिकार थे कि गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी। स्टेशन राजा मंडी था, यानी आगरे का सिविल स्टेशन अगला आगरा छावनी था। मैं डब्बे से बाहर आ गया। ताजमहल दूर से दिखाई दे रहा था। हालात के तहत मैंने ताजमहल की सैर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। चंद मिनट में गाड़ी रवाना हुई और मैं वापस दिल्ली जाने वाली गाड़ी की इंतजार में वेटिंग रूम में बैठ गया। वापसी के लिए मैंने सेकंड क्लास का टिकट लिया और शाम ढलने से पहले वापस दिल्ली पहुंच गया। वापस के सफर के दौरान भी मैं परेशान रहा। दिल्ली पहुंचकर मैंने फैसला किया कि ताजमहल देखने का प्रोग्राम 2-3 माह के लिए भूल जाओ। मुझे क्या खबर थी कि आइंदा चंद रोज में ही मेरे साथी को एक हंगामी मिशन पूरा करने के लिए आगरा जाना पड़ेगा। अगले रोज़ अब्दुल हकीम सुबह 10 बजे मेरे होटल आया। इसने बताया कि कर्नल शंकर 2 दिन आगरा रहकर गुज़श्ता शाम वापस लौटा है। रात को नशे में कह रहा था कि पाकिस्तानी फेल जासूस का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ कि 2 और पकड़े गए। हेडक्वार्टर की तरफ से उसे सिलसिले में आगरा जाना पड़ा था। वो भारतीय इंटेलिजेंस का शिकवा कर रहा था कि जिस सेफ हाउस में पाकिस्तानी जासूस को तफ्तीश के लिए रखा गया वो राजा मंडी के रेलवे स्टेशन से आगरा की जानिब बने रेलवे ऑर्डर सिग्नल के साथ वाक़ई है। और इस रिसीव करने वाले DMI के 2 आदमी रेलवे स्टेशन से लेकर सेफ हाउस तक रेलवे पटरी के इस किनारे चलाकर ले जाया गया। अब्दुल करीम अपने मुतलक फिर मेरी मिन्नत समाजत शुरू कर दी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं जल्दी तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करूंगा। कुछ और बातें करने के बाद मैंने उसे 200 रुपये दे और रुस्खत कर दिया। नए पाकिस्तानी जासूस को पकड़ जाने की खबर ने मुझे पुजमुर्दा कर दिया था। मैं अपने साथियों के घर चला गया और उन्हें ये खबर सुनाई। मेरे साथी जवान नडर और मोहब्बतन से सरशार थे। ये सुनकर वो भड़क उठे और कहने लगे कि इन जासूसों को छुड़ाने के लिए हमें फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे 3 साथी गैर शादीशुदा थे। इनमें से एक ने कहा कि सर, जब हमसे भारत में दाखिल हुए हमने ज़ीनी तौर पर तस्लीम कर लिया है कि हम अपने खून के आखिरी कतरे तक अपने वतन की हुर्मत और हिफाजत के लिए निछावर कर देंगे। जो पकड़े जा चुके वो भी हमारे भाई, यकीनन यही जज्बा लेकर ही वो भारत में दाखिल हुए होंगे। अगर हम उन्हें बचाने में कामयाब हो जाए तो हमारे सब मिशन में सबसे अहम मिशन होगा। चौथे साथी ने कहा कि सर, अगर आप में या हम में कोई पकड़ा जाए और बाकी को इसकी जगह का इल्म हो जाए तो क्या आप या हम खामोश बैठे रहेंगे? गिरफ्तार होने वाले भी अपने हैं और उन्हें रिहा कराने के लिए हमें कोई तहकीकात बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि इनके जज्बे की कदर करता हूँ, मगर हमें जोश के साथ साथ होश से भी काम लेना चाहिए। पूरे भारत की आबादी में हम 5 ही एक दूसरे को हकीकत से बाखबर है। हमें यहाँ सिर्फ अपने मिशन को पूरा करने के लिए भेजा गया है। अगर हम अपनी सीनियर्स की हदायत के खिलाफ जासूस को रिहा कराने का भी फैसला कर ले तो हमें चंद बातों को मद्देनजर रखना होगा। सबसे पहले कि इन जासूस की निगरानी के लिए कितने पहरेदार मुतय्यन है और इनके पास किस किस्म का असला है। नंबर 2, भारतीय तशद्दुद के बाद वो इस काबिल भी है कि हिरासत से छूटने के बाद वो भाग सके। नंबर 3 कि वो फरार होकर कहाँ जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ का बाड़ा तो इनके फरार के बाद फौरन सील कर दिया जाएगा। पहरेदारों से बगैर मुकाबले के हम उन्हें छुड़वा नहीं सकते। मुकाबले में हम जख्मी और गिरफ्तार भी हो सकते हैं और ऐसी सूरत में हमारा सारा मिशन उलट पुलट हो सकता है। मैं तो उन्हें समझा बुझा कर वापस लौट आया। मेरे वहम वो गुमान भी नहीं था कि मेरे लौट आने के बाद वो सारी प्लानिंग करके इसको अमली जामा पहनाने के लिए निकल खड़े हो गए। अगली सुबह 10 बजे मुझे मेरे नंबर 2 का फ़ोन आया। इसने घबराए हुए लहजे में मुझे फौरी मिलने का कहा। मैं हैरान था कि ऐसी क्या इमरजेंसी होगी। मैंने उसे मुगल रेस्टोरेंट में 11 बजे मिलने को कहा। मुकर्रर वक्त पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो मेरा बाहर इंतज़ार कर रहा था। रेस्टोरेंट अभी खुला था। इसने जो कुछ बताया इस सुनकर मैंने रूंगते खड़े हो गए। इसने कहा कि गुज़श्ता रात से 3 साथी गायब है। पहले तो वो भी समझाता रहा कि फिल्म का आखिरी शो देखने चले गए। जब वो 12 बजे के बाद भी वापस नहीं तो मैं घबरा गया। भारत में क़याम के दौरान ऐसा पहली मरतबा हुआ था। मेरी हिदायत के मुताबिक उन्हें दूधू की टोली में बाहर जाने की इजाज़त थी। फिल्म आखिरी शो देखने की सख्ती से ममानियात थी। बाहर जाने से पहले अपनी बाकी 2 साथियों को लाजमी बताने के कहा जा रहे और कब तक वापस लौटेंगे। और अब सूरत हाल ये थी कि 2 की बजाय 3 साथी शाम 8 बजे के गायब थे। उन्होंने मेरे नंबर 2 और अपने सीनियर्स को भी गैर मौजूदगी में नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं। मेरे नंबर 2 के मुताबिक सुबह मैंने इनका सामान चेक किया तो वो अपनी पिस्टल, फालतू राउंड और चिड़ियों वाली 20 साथ ले गए थे।
मुझे कई किस्म की अंदेशों और वसवसों ने घेर लिया। इनकी गुमशुदगी को कोई वजह समझ में नहीं आती थी। मैंने बिलावजह वक्त ज़ाया करने के नंबर 2 को साथ लिया और इनके घर चला गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन पर क्या भी थी। मैंने इन कमरों को भी अच्छी तरह कंगाल डाला, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल सकी जिनसे इनकी गमशुदगी का सुराग मिलता। तक हाँक कर मैं नंबर 2 के कमरे में जा बैठा। बार बार एक ही बात ज़हन में आती थी कि वो फिल्म का आखिरी शो देखने गए होंगे, वापसी पर पुलिस हवालात में होंगे और इनसे तफ्तीश के दौरान हमारा सारा भेद खुल जाएगा। न सिर्फ हम दोनों भी पकड़े जाएंगे बल्कि इतनी हमडाक भी दुश्मन के हाथ लग जाएगी। जैसे जैसे मैं इस जावे पर सोचता वैसे वैसे मुझे तारीखी नज़र आती। मैंने फैसला किया कि डाक ट्रांसमीटर ज़रूरी कागजात अपने होटल शिफ्ट कर लो इससे पहले कि यहाँ पर चापा पड़े। इसके साथ ही भी ज़हन में आया कि मुश्किल 3 साथियों को मेरे होटल का भी इल्म है। पकड़े जाने की सूरत में तशद्दुद के दौरान अगर वो बोल पड़े तो दुश्मन फौरन होटल भी पहुंच जाएगा। लिहाजा फौरी तौर पर मुझे और मेरी नंबर 2 को किसी गैर मारूफ होटल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैंने नंबर 2 को सब सामान पैक करने का कहा कि मुझे और वक्त हुई सोच नहीं रहा था। फिक्र थी डाक और दूसरी अशिया को महफूज करने की और ख़ुद को और अपने साथी को बचाने में। नंबर 2 को बड़ी बेकरारी और तेज़ी से सामान पैक करने का कह रहा था कि ये वक्त का खेल है। अगर हम पहले इस घर से निकलते हैं तो पुलिस और भारतीय इंटेलिजेंस यहाँ पहुँच जाती है। इसकी पियत में मेरी नज़र टाइम पीस पर पड़ी तो मुझे एक कागज़ दबा हुआ नज़र आया। मैंने वो कागज़ निकाल कर देखा तो इसमें जो लिखा था पढ़कर मेरी आंखें पटी की पटी रह गई। ये ख़त मेरे तीनों साथियों का मुझे और मेरे नंबर 2 को मुखातिब करके लिखा गया था और इस पर तीनों के दस्तखत सबत थे। ख़त का मजमून कुछ इस तरह से था कि हम तीनों आगरे में मौजूद गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। अगर हम 2 दिन तक वापस न लौटे तो समझ लीजिए कि हम दुश्मनों की गोलियों का निशाना बन चुके हैं और अगर हम जिंदा गिरफ्तार हो गए तो हमें साइनाइड की दाढ़ी चबाकर अपनी जानें दे देंगे, लेकिन अपने राज और आपके मुतल्लक दुश्मन को नहीं बताएंगे। खत में उन्होंने मुझसे और नंबर 2 से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की माफ़ी मांगी थी और लिखा कि अगर हम ये कदम न उठाते तो हमारे दिफा इस ख्याल से पड़ जाते कि हमारे 2 पाकिस्तानी भाई हमारे जैसे मिशन की तकमील के लिए गिरफ्तार हो चुके थे और इनकी कैद और तशद्दुद की जगह का मालूम होने पर हम इनको कोई मदद नहीं कर रहे। उन्होंने लिख दिया कि आप हमारी कामयाबी की दुआ करें और हमारे ज़िंदा रहने की सूरत में हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और कामयाब और ज़िंदा लौटने की सूरत में आप या कोर्ट मार्शल जो सदा देंगे हमें बखूशी कबूल कर लेंगे। मैंने नंबर 2 को बड़े और से ये ख़त पढ़ने को दिया। इस ख़त ने मुझे और ज़्यादा परेशान कर दिया था। नाकामी की सूरत में उन्होंने अपनी जान देने और राज न बताने का कहा था, लेकिन इस जज्बाती पस मंजर में ऐसे जज्बाती फैसले कोई अहमियत नहीं रखते। नंबर 2 भी खत पढ़कर हैरान व शर्मदा रह गया। ये खत मिलने और पढ़ने के बावजूद मैंने नंबर 2 के साथ मिलकर सारा सामान इकट्ठा किया और चतलाल मियाँ में एक मामूली होटल में 2 कमरे किराया पर लिए और वही शिफ्ट हो गए। जाने से पहले नंबर 2 ने मालिक के मकान को 3 साथियों की छूटी हुई चाबियां दी और कहा कि हमारी 3 साथियां हम डिलीवरी के सिलसिले में दिल्ली से बाहर गए और मैं अभी एक बहुत अहम डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ। अब ये 3 चाबियां रख ले और जब इनमें से कोई वापस आए तो ये चाबियां उसे दे दीजिएगा। ये चतलाल मियाँ से मैं सीधा अपने होटल पहुंचा और मैं अपने चंद जोड़े कपड़ों की ज़रूरत कागजात साइलिंग से पिस्टल और लाकर से सारे पैसे निकाल कर सब केस में रखे और चतलाल मियाँ होटल में पहुँच गया। दिन का बाकी हिस्सा और रात हमने एंकों में काटी। यूँ महसूस हो रहा था कि किसी बहुत बड़े जलजले की वजह से हमारा डरेगी या यूँ आइंदा मिशन की बात तो एक तरफ रही। हम दोनों सोच रहे थे कि किसी तरह हम आने वाले कुरियर को डाक दे सके। मेरे नंबर 2 ने कहा कि हमें ट्रांसमीटर पर पाकिस्तान राबिता करना चाहिए। मैंने इसकी तजवीज़ रद्द कर दी कि मेजर हसन और इसके साथी को गिरफ्तारी के बाद भारतीय इंटेलिजेंस पहले ही चौकन्ना थी। अब इन 2 जासूसों की गिरफ्तारी पर तो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुके हैं। इन हालात में ट्रांसमीटर पर लंबा पैगाम भेजना खुद दुश्मन की दावत देने के मुतरदिफ होगा। मेरे नंबर 2 ने कहा कि अगर हमारे साथी खीरत से वापस भी आ गए तो उनकी कुरियर पाकिस्तान भेज दिया जाए। मैंने उसे कहा कि अभी इंतज़ार करो और देखो इस वक्त हमारे सामने सबसे अहम मसला ये इंतहाई अहम डाक किस तरह पाकिस्तान भेजना था। इन दोनों ने जो गलती की थी वो सरासर डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी थी। मुझे ये भी खदशा था कि इनके सही सलामत वापस आने पर अगर इनको कुरियर के साथ पाकिस्तान भेज दिया गया तो वो कोर्ट मार्शल के डर से कई रास्ते में फिर आगे पीछे न हो जाए। उन्होंने ख़त में अपने जज्बात लिखकर अपने आप को तो सही साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर दिया। मैंने नंबर 2 को कहा जिन हालात में भी हमें बाहर जाना पड़े हम इकट्ठे बाहर निकले और एक दूसरे को कवर करेगा। अगले रोज़ हम दोनों 10 बजे के इनके घर के सामने से गुजरे तो हमें मालिक के मकान मिल गए। इसने बताया कि वो 3 सुबह ही वापस आ गए। हमें करीबन भागते हुए घर में दाखिल हुए तो वो सो रहे थे। नंबर 2 ने उन्हें जगाया। मुझे और नंबर 2 को देखकर वो घबरा गए और आंखें न मिला रहे थे।
میں نے ان کو بالکل نارمل لہجے میں بات کرتے ہوئے مخاطب کیا اور کہا کہ تمہارا خط مل گیا تھا، لہٰذا وجوہات بیان کرنے کی بجائے اپنے جانے اور آنے کی حالات بیان کرو۔ مگر تم میں سے صرف ایک، باقی سب خاموش سے سنا۔ ان میں جو کراٹے جانتا تو وہ کھڑا ہوا اور بولا کہ سر ہم سے بڑی غلطی ہوئی۔ جو حرکت بیٹھے اسے ٹوکا اور کہا کہ وہ بتاؤ جو میں نے پوچھا غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ میرے لہجے میں کرخدگی آ چکی تھی اور گھبرا گیا اور کہنے لگا سر آپ کے جانے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ آگرہ میں گرفتار دونوں پاکستانیوں کو بچانا ضروری ہے۔ ہمیں یقین تھا کہ آپ ہمیں ہرگز اس کی اجازت نہ دیں گے، سو ہم نے طے کیا کہ آپ کی لاعلمی میں یہ کام کیا جائے۔ ہم تینوں مسلح ہو کر ریلوے اسٹیشن پہنچے اور رات 11 بجے آگرہ جانے والی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ یہ پیسنجر گاڑی تھی۔ یہ اسٹیشن پر روکی، دوسری گاڑیوں کے پاس کرواتی ہوئی علی صبح راجہ کی منڈی اسٹیشن پر پہنچے۔ ہم گاڑی سے اتر گئے اور سیف ہاؤس جس کا نقشہ آپ نے بتایا تھا کی طرف چل پڑے۔ ہم نے سوچا تھا کہ دن بھر ان کی نگرانی کر کے رات کو کمانڈو ایکشن کر کے اس کو چھڑوانے کی کوشش کریں گے۔ ریلوے اسٹیشن سے یہ ریل کی پٹریوں کی ایک چال بجا ہوا تھا جو آگرہ کینٹ اسٹیشن تک پہنچا تھا۔ سیف ہاؤس کے سامنے دوسری کچی بستیوں کی آبادی تھی، وہاں بہت لوگ جمع تھے جو سیف ہاؤس کی طرف اشارہ کر کے بول رہے تھے۔ ہم بھی ان میں شامل ہو گئے۔ سیف ہاؤس کے سامنے کئی فوجی جیپیں اور ایمبولینس کھڑی تھی اور ملٹری پولیس والے کسی کو بھی سیف ہاؤس کی طرف جانے نہیں دے رہے تھے۔ کچی بستی والے بھی اپنے گھروں کے سامنے دور سے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہمارے پوچھنے پر لوگ مختلف باتیں بتانے لگے، پر کوئی اپنے خیال کے گھوڑے دوڑا رہا تھا، لیکن کوئی یقین سے بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایمبولینس اور جیپ کی موجودگی سے معلوم ہوتا کہ کسی سینئر افسر کا آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ملٹری پولیس والے پٹروں کی دوسری طرف لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کا کہہ رہے تھے، لیکن پٹری عبور کر کے وہ لوگوں پر زبردستی نہیں کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ریلوے کا ایک ملازم اپنی وردی میں اس بستی میں داخل ہوا تو لوگوں نے اسے گیر لیا۔ اس نے بتایا کہ صبح 3 بجے وہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے گھر سے نکلا ہی تھا کہ سامنے والے سیف ہاؤس میں اندر اور باہر سے گولیاں چلنے کی آواز آنے لگی۔ اس نے کہا کہ گولیاں کی آواز سن کر وہ پٹیوں کے ساتھ نشیب میں لیٹ گیا۔ اس سیف ہاؤس کے اندر اور باہر ہلکی فور کی بلب جل رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سیف ہاؤس کے باہر 3 وردیوں میں ملبوس فوجی گولیاں لگنے سے مر چکے اور اندر سے گولیوں کی آواز آ رہی تھی۔ چند منٹوں بعد میں نے دیکھا کہ 5 آدمی جنہوں نے عام شیروں کے لباس پہنے ہوتے، 2 اور آدمی کو جنہوں نے بھی شیری لباس پہنے ہوتے کے سہارا دیتے ہوئے ہاؤس سے باہر لائے اور باہر ایک گاڑی کھڑی تھی۔ سب میں سوار ہوئے اور پکی سڑک پر جا کر تیزی سے چلتی ہوئی گاڑی غائب ہو گئی۔ یہ سب ہونے کے بعد وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ وہ بھاگ کر اسٹیشن دفتر گیا اور اپنی حاضری لگوائی اور جو دیکھا تھا اس ڈر کی وجہ سے وہ چپٹی لے کر گھر جا رہا تھا۔ وہ اس معاملے میں کوئی بیان نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ پرائی مصیبت وہ اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تھوڑی دیر بعد ایک جیپ آئی، اس میں ایک سٹار لگے ہوئے وردی میں ملبوس افسر باہر نکلے اور سیف ہاؤس کے اندر گیا اور چند منٹ بعد باہر آ گیا اور اپنے جونیئر افسران سے باتیں کی اور جیپ میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ریلوے ملازم کے کہنے کے مطابق 3 لاشیں باہر تھی، ان کو ہمارے جانے سے پہلے ایمبولینس میں رکھ دیا گیا تھا۔ سورج کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ جہاں وہ 3 لاشیں تھیں، چونے کے ساتھ سیم لاشوں کو جگہ کو مار کیا گیا تھا۔ سیف ہاؤس کے اندر سے 3 لاشوں کو ہمارے سامنے ایمبولینس میں رکھا گیا۔ سیف ہاؤس کو تالا لگا کر 2 فوجیوں کو پیرے پر کھڑا کر دیا گیا۔ پہلے ایمبولینس اور پھر باقی جیپیں بھی وہاں سے چلی گئی۔ اب ہمارا وہاں ٹھہرنا بیکار تھا اور خطرناک تھا، لہٰذا ہم اس راستے سے راجہ کی منڈی اسٹیشن پر پہنچ گئے اور دلی کی طرف جانے والی جو پہلے ٹرین میں اس میں سوار ہو گئے۔ اسٹیشن پر بہت سے فوجی صفائی افسران اور سول کپڑوں میں فوجی اپنے ہیئر کٹ کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ وہ کتوں کی طرح کسی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ہم نے دلی کی بجائے امبالہ کی ٹکٹ لیے تھے، لیکن اسٹیشن پر فوجی کو پوچھ گچھ سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایک ترکیب سوجی۔ میں نے اپنی کلائی سے گڑی اتار کر جیپ میں رکھی اور ایک کیپٹن کے پاس جا کر اس کی نمستے کا اور اس سے ٹائم پوچھا۔ اس نے وقت تو بتا دیا۔ میں نے پوچھا امبالہ جانے والی گاڑی کب آئے گی؟ اس نے جلا کر کہا ریلوے کسی آدمی سے جا کر پوچھ، مجھے کیا معلوم کب آئے گی، گاڑی تو پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ میں نے ویسے ہی وہاں ایک گلی سے پہنچا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کیپٹن کے پاس سے گزرتے ہوئے پھر اسے نمستے کہا۔ تو باقی جو ہر طرف فوجی بکھرے ہوئے پوچھ گچھ کر رہے تھے، میرے کیپٹن کے ساتھ کھڑے ہو کر بات چیت کو دیکھ کر مجھے وہ کیپٹن کا وقار سمجھتے ہوئے ہمیں گاڑی کی طرف جانے سے نہ رکا اور ہم ایک ڈبے میں جا کر بیٹھ گئے اور بخیرت دہلی پہنچ گئے۔ رات ہم نے ویٹنگ روم میں بسر کی کیونکہ فوجی چیکنگ کر رہے تھے۔ ہم سے بھی انہوں نے پوچھا۔ ہم نے کہا کہ راجہ کی منڈی سے اور امبالہ جانا ہے۔ جس ٹرین میں ہم آئے وہ دلی تک ہی تھی، اس لیے امبالہ والی ٹرین کی انتظار کر رہے تھے۔ ہم نے انہیں ٹکٹ دکھا کر مطمئن کر دیا۔ وہ آگے بڑھ کر گئے۔ یہاں آ کر ہمیں شدت سے احساس ہوا کہ آپ کی اجازت کے بغیر ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ڈرتے ڈرتے ہم گھر پہنچے تو ہم سب حقیقت بیان کر دیا۔ ہمیں آپ کی غلطی کا شدت سے احساس ہے۔ ہم اپنی اس حرکت پر بے حد نادم ہیں۔ آپ ہمارے لیے جو سزا تجویز کرے گا میں قبول ہوگی۔ میں نے کہا کہ سزا کے بارے میں تو بعد میں بات کروں گا، ابھی 2 میرا اور نمبر 2 کے ساتھ چلو اور ایک گھر میں ہے۔ ہمیں چاروں چتر لال میاں ہوٹل میں گئے، سامان اٹھایا اور واپس
और वापस पहले साथियों के घर गया और इनका सामान वहाँ रखा और फिर मैं अपना ब्रीफ केस लेकर वापस लूडी होटल आ गया। कमरे में पहुंचकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मरते मरते हम इस जात ने बचा लिया। जब मैं वापस पाकिस्तान आया तो मुझे पता चला कि कब पकड़े जाने वाला अफराद का ग्रुप भी 5 अफराद पर मुश्तमिल था। ये पांचों आगरा चौनी में अपने टारगेट पकड़ने के लिए 2 और 3 की टोली में दाखिल होने की कोशिश में थे। KFIU ने शक पड़ने पर 2 को पकड़ लिए थे और DMI वालों को हवाले कर दिया था और बाकी तीनों ने ये सारी कार्रवाई देख रहे थे। इनका ग्रुप लीडर भी पकड़े जाने वालों में शामिल था। बाकी तीनों ने अलग अलग रहकर इनका पीछा किया और इसी शाम सेफ हाउस तक पहुंच गए। 4 दिन तक वो अपने साथियों को चढ़वाने की तदबीरें करते रहे। इस दौरान गिरफ्तार साथियों पर दरमियाना तशद्दुद भी किया गया था। तीनों आजाद साथियों ने कमांडो एक्शन करने का फैसला किया और जिस सुबह मेरे साथी वहां पहुंचे इस रात को उन्होंने भारतीय फौजों को हलाक करके अपने साथियों को छुड़वा कर ले गए थे। मोटरकार भी इस रात गन पॉइंट पर चीनी गई थी और आगरा स्टेशन के करीब इस छोड़ दिया। वो पांचों पहले लखनऊ फिर भारत नेपाल के पहाड़ों से गुजरते हुए नेपाल में दाखिल हुआ और काठमांडू से अपने सफारत खाने के जरिए पहले मलेशिया और फिर बखैरियत पाकिस्तान पहुंच गए थे। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्त के साथ। अपने दोस्त असद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया वस्सलाम।